All right, viewers, a day after two drug peddlers were taken into custody by the NCB, the peddlers have now exposed Shouvik Chakrabarty's link to the drug cartel. With the narcotics are at the WhatsApp chats which detail or give out full details of the drug deals struck between Ria's brother as well coming to light. Call records from Shouvik's phone have also confirmed that he was in touch with these peddlers as well. We'll now go across to my colleague Ridhim Anand Bharadwaj for more on this. Ridhim, please share more details of how the NCB probe is certainly getting bigger. Let's tell our viewers first, Richa. Shouvik Chakrabarty's name is coming up in a big way in this case. Now the NCB crackdown has begun in a massive way. We're also very clearly being told that the NCB in its crackdown has arrested yesterday two drug peddlers. Zayed, one of them, has very clearly given out great details that yes, he had given drugs which were consumed and procured by Shouvik and his friends. Let's also tell our viewers that the name of Samuel Miranda comes for the first time. The big news point that's coming from here, Shouvik Chakrabarty had taken drugs from Zayed, and this is clear from the 17th March 2020 call records of Shouvik Chakrabarty. As the call record states, instructions had been given to Samuel Miranda by Shouvik Chakrabarty to pick up these drugs from Zayed for a sum of 10,000 rupees, and 5G is the amount of drugs that he had said should be picked up. The second news point that is very clear that the NCB has able to come to unearth is that there are two contacts that Shouvik Chakrabarty has in the drug circle. The third news point that we've been able to gather from the NCB sources very clearly is Shouvik Chakrabarty is going to now be grilled on this, but also more clearly, these drug peddlers have also admitted, Zayed has admitted, who's been arrested, who's going to be produced in court very soon, that there was a person, two people came to get the drugs and 10,000 rupees was given to him and 5G of drugs had been taken from him on 17th March 2020. They've also verified it with the location details. So this is clear evidence and proof that Shouvik Chakrabarty had in fact procured and consumed drugs, and it's very clear from this conversation Samuel Miranda's name also comes in. It's the first time that we are now seeing very, very clearly the links have been drawn between the drugs that we are speaking about and Shouvik Chakrabarty, someone whom Ria Chakrabarty in PR interviews have clearly stated is out of a job, has no money, but yet 10,000 rupees had been given by him to the drug peddler. All right, we'll also go across to my colleagues Gaurav as well as Nidhi joining us live at this point. Gaurav, to you first. It is important to note as to how both these drug peddlers will be in fact brought in front of the court after their arrest that happened yesterday. Please share more details. What are the timeline of events that we are awaiting at this point as to how the NCB will now also possibly question Shouvik Chakrabarty next? देखिए, अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कल जायद विलात्रा, जिसको अरेस्ट किया गया और तकरीबन शाम में उसकी अरेस्टिंग दिखाई गई, उसको कल दोपहर में ही एनसीबी ऑफिस पूछताछ के लिए लाया गया था और उसके खुलासे के बाद, उसके एडमिशन के बाद उसको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया शाम को। अब क्योंकि उसकी रिमांड लेनी है पुलिस को, इसके अलावा कल जब उसके कहने पर कई जगहों पर रेड मारी गई तो उसमें जो चौथा शख्स गिरफ्तार हुआ उसका नाम है बसित। अब तक कुल 4 अरेस्टिंग हो चुकी है, जिनमें से 2 को पहले जमानत मिल चुकी है। अब जैद और इसके अलावा बासित, इन दोनों की रिमांड लेनी है। अब दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कैसे शौविक चक्रवर्ती के साथ जो बातें या लिंक जो सामने आ रहा है उसको इस्टेब्लिश कैसे किया जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एनसीबी के पास है जिसमें सीडीआर है, इसके अलावा चैट है और इसके अलावा तीसरी चीज़ है लोकेशन, यानी कि जिस लोकेशन पर जिस वक्त ड्रग की सप्लाई हुई वहाँ पर जैद और सैमुअल मिरांडा दोनों ही मौजूद थे। जैद को 3 बार सैमुअल मिरांडा ने कॉल की थी, लेकिन अब इन तीनों के साथ में बिठाकर एनसीबी क्रॉस क्वेश्चनिंग करा सकती है, कन्फ्रंट कराएगी और उन बातों को वेरीफाई करेगी जो बातें अभी जो जैद विलात्रा है उसने अभी तक स्वीकार की हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण होगा कि सैमुअल मिरांडा का नाम आने के बाद ये चीज़ और बढ़ जाती है। दूसरी बात, जिस तरीके से शौविक चक्रवर्ती ने जैद से कहा, जैद से ड्रग्स लेने के लिए कहा 10,000 रुपये में 5 ग्राम। अब इसमें कुछ सवाल ये उठते हैं कि क्या वो शौविक ने अपने कंजम्पशन के लिए खरीदवाया। और यहाँ पर ये देखिए तस्वीरें इस वक्त जो हैं, यहाँ पर कुछ लोग पहुँचे हैं कोर्ट में, तो यहाँ पर हलचल पहुँच रही है और थोड़ी देर में यहाँ पर जो जैद विलात्रा है वो यहाँ पर पहुँचेगा।
तो सवाल यही है कि किस तरीके से ये पूरा मामला जो है वो सामने आया। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि शौविक चक्रवर्ती का जो ड्रग लेने की बात है, क्या वो कंजम्पशन करता था या वो ड्रग को बिकवाता था, वो उसमें किसी एक रोल अदा करता था किसी बिचौलिए का, क्योंकि उसने किस वजह से शौविक को कहा जैद का नंबर लेकर उससे बात करने के लिए, ये सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और ख़ास करके हम आपको बता दें कि दिल्ली से जब से एनसीबी की टीम आई है और ख़ास करके डेप्यूटी डायरेक्टर जो ऑपरेशन है उनके पूरे कमान को उन्होंने संभाला हुआ है, उसमें ये चीज़ें निकल कर सामने आ रही कि तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा ड्रग पेडलर्स को पूछताछ किया जा चुका, जिसमें 4 महत्वपूर्ण लोग निकले, जिसमें करण और अब्बास जो 2 पकड़े गए थे, कम उम्र के लड़के थे लेकिन ड्रग पेडलिंग करते थे पार्टीज़ में, उनको बेल तो मिल गई है, लेकिन उनकी बिना पर जिस तरीके से जैद विलात्रा और उसके बाद चौथा नाम बसित का जुड़ा, ये जो तार जो एस्टेब्लिश करना चाहती थी कि इसमें रिया चक्रवर्ती या शौविक चक्रवर्ती या उनके किसी फैमिली मेंबर का कोई हाथ है, वो अब उसके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो गए और अब रिमांड पे लेने के बाद ये चीज़ें स्टेटमेंट में कोशिश करेगी एनसीबी कि वो लोग स्वीकार करें। इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये भी थी कि एनडीपीएस एक्ट में सबसे महत्वपूर्ण था कि या तो ड्रग की बरामदगी हो कि आपके पास ड्रग मिला और आपको गिरफ्तार किया गया, या आप ड्रग कंज्यूम करते हुए पकड़े गए और आपका मेडिकल टेस्ट हुआ और आप उसमें पकड़े गए। लेकिन ये चीज़ें क्योंकि पुरानी थी, इस नाते एनसीबी ने इसमें एक अलग नेटवर्क बनाया और इसमें ड्रग पेडलर्स को पकड़कर वेरीफाई करना शुरू किया कि किस तरीके से इसमें रिया चक्रवर्ती या शौविक चक्रवर्ती शामिल हो सकते हैं। और इसमें सफलता जो है वो एनसीबी की टीम को मिलती हुई दिखाई दी है, जिसमें 2 चेहरे, 2 ड्रग पेडलर इस वक्त जो है एनसीबी के पास हैं। Gaurav, हमारे साथ बने रहिए. We'll also go across to my colleague Nidhi now joining us with more on this. Nidhi, even as we speak right now, the CBI investigation is also simultaneously going on. We do know that all the key players are back at the DRDO guest house. साथ ही साथ रिया चक्रवर्ती के पिता को भी आज दोबारा क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया है. तो ड्रग के एंगल को बड़ा करते हुए देख, क्या हम अभी ये एक तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिया चक्रवर्ती के फादर से भी ये सवाल किए जाएंगे? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, क्योंकि रिया चक्रवर्ती की अगर फादर से एक बार फिर से पूछताछ हो रही है, कल 8 घंटे की पूछताछ हुई है, तो इसलिए कहीं ना कहीं कनेक्शन सामने आएगा. और रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती भाई बहन हैं. रिया चक्रवर्ती के फादर इंद्रजीत चक्रवर्ती से ये सवाल ज़रूर पूछा गया होगा कि क्या 8 घंटे की आपकी पूछताछ हुई तो उसमें क्या आप जानते थे कि रिया चक्रवर्ती इस तरह ड्रग्स लेती थी, या कोई ड्रग्स का कनेक्शन था, या आपका बेटा शौविक चक्रवर्ती था. लेकिन एनसीबी को, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को एक बड़ी लीड मिली है और ये लीड एविडेंसेस में जा रही है, जैसा कि गौरव जानकारी दे रहे थे. एविडेंसेस, सबूत जुटाने की कोशिश है, जिसमें चैट रिट्रीव हुई है, जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक डाटा रिट्रीव हुआ है और लोकेशन रिट्रीव हुआ है. इसके अलावा जो जैद विलात्रा की गिरफ्तारी है, जो जैद विलात्रा को अरेस्ट किया है, वो एक बहुत अहम लीड है. वो जानकारी ज़्यादा देगा कि किस तरह से, क्योंकि कोर्ट में आज पेशी है, तो वो बताएगा कि कैसे इस मामले में शौविक चक्रवर्ती ने उससे संपर्क किया या शौविक चक्रवर्ती से लगातार ड्रग को लेकर कनेक्टिविटी थी. हर जांच एजेंसी, एवरी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इज वर्किंग ऑन सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस. एंड अभी अगर मैं ईडी में हूं तो ईडी दफ्तर में पूछताछ वरुण माथुर से भी चल रही है. तो साइमल्टेनियसली सीबीआई अलग पूछताछ कर रही है. 13th डे है इन्वेस्टिगेशन का. सीबीआई पूछताछ कर रही है इंद्रजीत चक्रवर्ती और संध्या चक्रवर्ती से. अब माँ का कितना रोल था रिया चक्रवर्ती का, और माँ को कितनी जानकारी थी, ये भी सब सीबीआई पूछताछ कर रही है. और ईडी जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो मनी एंगल क्या है, मनी ट्रेल क्या है, या मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ क्या मामला है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत ने कंपनियां भी कई खड़ी की थी, कितने बिजनेस पार्टनर थे, क्या कुछ प्रॉफिट हुआ था, क्या सुशांत सिंह राजपूत की कंपनी लॉस में जा रही थी, अगर लॉस में जा रही थी तो क्या विलिंगली सुशांत सिंह राजपूत कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाते थे कंपनी में, क्या एंगल था, ये सब मनी ट्रेल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट देख रही है. ड्रग्स का एंगल नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो देख रहा है. और जो all the 3 agencies are simultaneously working and investigating the Sushant Singh Rajput's death probe. We leave it at that. Thank you so much, Gaurav and Nidhi, for getting us the latest as far as the CBI as well as the other investigation goes.